أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكمي ولحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من وارثة جنات النعيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم کون سا سورہ پڑھیں گے؟ سورہ العصر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے انشاءاللہ۔ سورہ عصر، اس کا ترجمہ اور اس کا روٹ ورڈز دیکھیں گے، بعد میں اس کا تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان البتہ نقصان میں ہی یا خسارے میں ہی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہو اور انہوں نے نیک اچھے عمل کیے ہو، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ کیا ہے اس میں؟ قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بولتا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، البتہ نقصان میں ہی، سوائے ان لوگوں کے۔ یہاں ان لوگوں کون؟ جو ایمان لائے ہو، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ بچ جاتی ہیں، وہ خسارے سے، وہ نقصان سے وہ لوگ بچ جاتی ہیں۔ اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اچھے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی بات بتلائی، یعنی حق کا راستہ بتائے، اور دوسروں کو صبر کا راستہ بتائے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ والعصر، اس کا روٹ ورڈز دیکھیں گے پہلے۔ گرامر کیا ہے؟ والعصر میں عین صاد را، دیکھو عین صاد را، والعصر کا روٹ کیا ہے؟ عین صاد را۔ ان الانسان، انسان کا روٹ کیا ہے گرامر میں؟ الف نون سین۔ کیا؟ الف نون سین۔ اس میں دیکھو نون پر ساکن ہے، پھر بھی ہمیں کیا؟ الف نون سین، یہ تین بھی اس کا روٹ ہے۔ اور لفی خسر، خسر میں کیا؟ خسارہ پانے میں، خسر ہمیں بولتے ہیں نا اس کی زندگی خسارے میں ہے، ایسا کیا؟ خا سین را، خسر، اس کا روٹ خسر۔ آمنو کا روٹ کیا؟ الف میم نون، امن میں۔ آمنو کا مطلب ہے امن میں رہنے والے۔ عاملو و عاملو، اس کا مطلب کیا؟ عمل کرنے والے۔ عمل میں کیا؟ عین میم لام، عاملو، عمل کرنے والے۔ الصالحاتی، صالحاتی کا مطلب یہ ہے صاد لام ہا، کیا؟ صاد لام ہا، سمجھ میں آتا ہے آپ سب کو انشاءاللہ؟ صاد لام ہا۔ اور وتواصو، وتواص کا روٹ کیا ہے؟ واو صاد یا، وتواص کا روٹ کیا ہے؟ واو صاد یا۔ بالحق، حق قاف تدش ہے، اس لیے کیا آتا؟ ہا قاف قاف۔ بالحق کا کیا؟ ہا قاف قاف۔ وتواصو، یہاں دیکھو واو صاد واو ہے،
यहाँ या में कैसा बदल गया, या और वाव अलिफ तीन भी ये बदलते रहते हैं, एक दूसरे की जगह बदलते रहते हैं। बिस सबर, सबर का बदला रूट वर्ड्स क्या है, स्वात बा रा, सबर, स्वात बा रा, सबर। समझ में आया सबको इंशाल्लाह? उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया। और इंशाल्लाह हम देखेंगे इसका तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पेपर भी भेजी, वो भी देखो, नहीं ऐसा भी देखो, इंशाल्लाह आप समझने की कोशिश करो। अरबी उर्दू पढ़ते तो ना देखो, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। उसका तर्जुमा पहले भी मैं बताई, फिर भी मैं बताती हूँ इंशाल्लाह। कसम है ज़माने की कसम, इस ज़माने की कसम, बेशक इंसान सरासर नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए हो और नेक अमल किए, और जिन्होंने आपस में हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। इससे मतलब क्या, कसारा करने का मतलब क्या, ये असर, ये सूर्य का नाम एक असर की नमाज का भी इसे मालूम हुआ था, असर की नमाज से, असर की नमाज है। इसी तरह ये सूरत बड़ी अहम सूरत है, बहुत ही अहम सूरत है। ये सूरा एक समझ में आ जाए इंसान को, बस उसे ईमान लाने के लिए ये बहुत बड़ा फायदा देता है ये सूरत। इसमें इसमें के पॉइंटों को कवर करो, इंशाल्लाह बेहतरीन जवाब मिलेगा हमको इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल उन नेमतों के बारे में होगा जो अल्लाह ताला ने दुनिया में अता की गई हो। क्या, ये नेमतें जो भी नेमतें अता की अल्लाह ताला ने, उन नेमतों के बारे में होगी को बोले। और ये क्या, इसमें क्या सबसे बड़ी नेमत, जैसे आंख, कान, दिल, दिमाग, अमन, वो सेहत, माल, वो दौलत और औलाद वगैरह। देखो, बस इंसान के खाली जिस्म में के आज़ा गिनकर अल्लाह ताला इसका शुक्र अदा करो, तुम्हें कितना शुक्र करना को बोलकर अल्लाह ताला इसमें फरमाया क्या, जैसे आंख, कान, दिल, दिमाग, अमन और सेहत और माल, दौलत और औलाद वगैरह। इसमें से कोसा भी इंसान के पास कमी हो, वो कितना के महसूस होता है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास आँख नहीं, मेरे पास कान नहीं, मेरे पास दिल में खराब है, दिल में चोट है। जिसके पास माल नहीं उसे माल की फ़िक्र, जिसके पास दौलत नहीं उसकी दौलत की फ़िक्र, जिसके पास औलाद नहीं उसकी औलाद की फ़िक्र। देखो ये माल कितनी अहम चीज़ें हैं एक इंसान के लिए। ये सब ध्यान दिया अल्लाह ताला। बास कहते हैं ये सवाल सिर्फ काफरों से होगा। तो थोड़े लोग क्या बोलते हैं ये सवाल सिर्फ काफरों से होगा। बास कहते हैं ये हर एक से होगा। क्या हर एक, इसमें काफर भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी, सब भी, हर हर इंसान के लिए ये सवाल होगा। क्योंकि महज सवाल मुस्तलजिम अजाब नहीं, जिन्होंने जिन्होंने उन नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह की हिदायत के मुताबिक किया हो। कौन अल्लाह, यहाँ जिन्होंने मतलब जो ईमान लाए, अल्लाह दिया तो नेमतों को अल्लाह अल्लाह के रास्ते में, यानी हिदायत के मुताबिक खर्चा किया हो। खर्चा करना इसमें क्या मतलब आता है, अल्लाह की नेमत से अल्लाह की हिदायत के मुताबिक खर्चा करने का मतलब क्या है, यानी नेक कामों में खर्चा करना, यानी किसी की ज़रूरत पर काम आना, किसी के तकलीफ में काम आना, किसी की बीमारी के वक़्त काम आना, वो माल एक दूसरे को ये करना, वो बेहतरीन काम लेना उससे। हमें ऐसा नहीं कि माल बैंक में जमा कर को रखो, उसे ब्याज खाते रहो। अल्लाह ताला का अज़ाब है उन लोगों पर। किसका अज़ाब है? अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अज़ाब, हिलाकत का अज़ाब है। इसीलिए हमें क्या करना, जो भी हमारे पास माल है, वो माल अल्लाह के रास्ते में हमें खर्च करना और नेक कामों में हमें करना। ऐसा करने से वो माल का भी फ़ायदा होता है, वो हमारा भी फ़ायदा होता है,
अल्लाह ताला ने बेहतरीन दर्जा भी अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला देता है। एक है माल माल खर्च करते तुनो, एक है ना माल खर्च करते तुनो। दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि उसे वो माल खर्च करने के बाद में वो लज्जत मिलती है इंसान को, दिल को सुकून आता, वो कितना बोलने को बयान रहता नहीं। एक है बख़ील, वो माल नहीं खर्च करता, वो जमा-जमा कर रखता। क्या होता, सिर से पाँव तक सोना पहना तो भी उसका दिल राहत ही नहीं रहता, उसको दिल सुकून नहीं रहता। इसके मुताबिक हमें क्या मालूम होता, अल्लाह ताला के ये माल अपना नहीं, अपना जो भी है हमें खाने की पीने के बावजूद ये बचता है, उसे दूसरों को अड़स-पड़स और सबका भी उस पर हक है। किसके-किसके कौन भी कमज़ोर है, उसका भी उस पे हक है। हमें बैंक बैलेंस जमा कर को रखना, उससे भी जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, उससे भी काम आने का नहीं इंसान को। जो भी ज़रूरत के मुताबिक आया वो काम अल्लाह के रास्ते में, मस्जिद में खर्च करना, गरीबों को शादियाँ में खर्च करना, कोई बीमारी है उसका इलाज करवाना, कोई बच्चों को फीस नहीं बन सकते उसका फीस बनना, यानी बहुत से काम अब हमें ₹100 का हमें घर में तरकारी लेते हैं, वो एक ₹20 की तरकारी हम दूसरे के लेते कितना फ़ायदा होता। ऐसा करने वालों के लिए बहुत अच्छा है ऐसा। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले क्या उनके लिए बहुत से अल्लाह की हिदायत के मुताबिक खर्च करना किया होगा। अल्लाह के हिदायत के मुताबिक खर्च किए हो गए, उनके लिए बेहतरीन सवाब है। वो क्या है उनके लिए जवाब भी दिया देखो। वो सवाल के बावजूद अज़ाब से महफूज़ रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह उनमें से हमाको बना। क्या होगा? इसी तरह माल खर्च करते तो ना का, उनाका वा अल्लाह ताला क्या उनाको जवाब दिया? जवाब दिया सवाल के बावजूद, यानी हमारा सवाल अल्लाह ताला एक भी हमारे से सवाल करा तो उसे जवाब देने की हमाको शामत आ जाती, क़यामत हमारे ऊपर टूट पड़ती। हमारा जिस्म के मैं पहले भी बताई, यानी हर जिस्म के हर चीज़ भी, हर बाल भी हमारा जिस्म तो का हर बाल, हर जगह, हर सब भी गवाही देते। उसमें हमें जवाब नहीं दे सकते। अगरचे ये काम में भी हमें शिरीक हो गए, अगरचे हम खुदा ना खास्ता किसी से ऐसा हुआ, फिर अल्लाह से तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह के बेहतरीन कामों में से वो काम लिए। ऐसे वालों को अल्लाह ताला वो गफूरुर रहीम है, मेरे मालिक को चाहा तो कुन फयकुन को वैसे जन्यान कैसा वो पहले करे तो गलती भी अल्लाह ताला चाहा तो वो माफ कर देगो, वो गलती के मुताबिक उसे अजर देता है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला चाहा तो। इसीलिए इसमें क्या बोला, ऐसे काम करते तो ना को वो माल खर्च करते तो ना को अल्लाह के हिदायत के मुताबिक ना क्या होगा, सवाल के बावजूद अज़ाब से महफूज़ रहेंगे। उनका सवाल भी नहीं होगा और अज़ाब से भी महफूज़ रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हों में से हमाको भी शामिल करना है इंशाअल्लाह। अ, और जिन्होंने कुफ़रान नेमत का इर्तिकाब किया, इन्हों कौन? दूसरे लोग। वो लोग ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करते तो नहीं, नेमतों का कुफ़्र करने वाले, यानी नेमतों को छुपा कर रखने वाले और अल्लाह की नेमत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करने वाले, उन लोगों का क्या है? इर्तिकाब होगा, वो वो इधर लिए जाएँगे, वो धर लिए जाएँगे तो वो अज़ाब अल्लाह ताला का। ज़माने से मुराद शब-ए रोज़ की ये गर्दिश और उनका अदल-बदल करना है। इसका मतलब क्या है? यानी सुबह होती है, सुबह हुई तो सुबह और शाम कितना जल्दी से जल्दी गुज़र जाता है। अब ये शायद हमें क़यामत के करीब, बहुत करीब हैं, पता नहीं क़यामत अब आती, अब ज़रा खुद का आती, पता नहीं। इसीलिए इसमें इसमें क्या सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक ऐसा अदल-बदल में भी आना है। रात आती है तो अंधेरा अंधेरा छा जाता है और दिन तुलू होता है तो हर चीज़ रोशन हो जाती है। अलावा अज़ाएँ कभी रात लंबी, दिन छोटा और कभी दिन लंबा और रात छोटी हो जाती है। यही मरूर अयाम ज़माना है, जो अल्लाह ताला की कुदरत और कार कारीगरी पर दलालत करता है। देखो ये क्या कभी रात लंबी होती, दिन छोटा होता, कभी दिन छोटा होता, रात लंबी होती। ऐसा अल्लाह ताला कैसा उनको हुक्म दिया, ऐसा वो चलकर जाता है और फिर भी रोज़मर्रा ज़िंदगी तेज़ी से गुज़रती है। पहले ऐसा बहुत लंबी होती थी, 1 साल के तो कितना के लंबा होता था, अब ऐसा नहीं।
जल्दी से गुजर जाता है, ज़माना जल्दी से गुजर जाता है। इसे इसलिए हमें चाहिए कि हमारे में जितना भी हो, जितना भी हमें ये करे, अल्लाह ताला के रास्ते में हम भी उसको उससे फ़ायदा उठाना और उससे दूसरों को भी फ़ायदा उठाने की तलकीन करना। यानी अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बेहतरीन बात हमें क्या पता चलती, माल जमा कर रखना वो क़यामत के दिन कुछ भी फ़ायदा नहीं आता। अगर क़यामत के बाद क्या, अगर मरने टाइम पे उसका माल उसे साथ नहीं आता, उसका माल उसके वारिसों का आता। इसीलिए हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रहे, वो माल को सही इस्तेमाल करना बेहतरीन इंसानी की अखलाक है। यानी वो खुद वो माल खर्च करना। एक है जवानी में खर्च करने वाला, एक है बुढ़ापे में खर्च करने वाला, मरते वक़्त खर्च करने वाला। और दोनों का माल का अजर बराबर नहीं, क्योंकि जवानी में खर्च करने वाले का सवाब ज़्यादा है। बुढ़ापन में क्या उसे मौत कैसा भी आ जाती, कबल को मौत के डर से खर्च करता है। ये ऐसा नहीं, इस जवानी में खर्च करने वाला उसकी जवानी है, अभी जीने की जवानी है, फिर भी वो दूसरों पर खर्च करता है, ये बेहतरीन सदका है। जब भी सदके का मौका आता, बढ़-चढ़ को करना, सदका करना बहुत बड़ा अमल है ये। इसीलिए इसीलिए रब ने उसकी कसम खाकर खाई है। ये पहले बतलाया जा चुका है कि क्या यहाँ पहले ज़माने की कसम खाकर अल्लाह ताला बतलाते हैं ये। हमें खा सकते हैं ज़माने की कसम? हम नहीं खा सकते। इससे ये बात भी क्या मालूम होता, ये पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला तो अपनी मखलूक़ात में से किसी चीज़ की कसम खा सकता है। लेकिन इंसानों के लिए सिर्फ अल्लाह की कसम के अलावा किसी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं। देखो हमें क्या बोलते हैं, माँ की कसम, बा की कसम, ऐसा सबकी कसम खाते हैं। ऐसा हमें किसी की भी, इंसान की हो, झाड़ की हो, किसकी ओले की भी हमें कसम खाने का हमारे को जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोल सकती हैं, नबियों पर बोल सकती हैं और ज़माने पर बोल सकती हैं। अब इसमें ज़माने को बोली, वल वल असर का, कुछ ज़माने को कसम खाई। ऐसा अल्लाह ताला चाहे चाँद को, सूरज को ऐसा बोल सकती हैं, अल्लाह ताला बोल सकती है। मगर इंसान अल्लाह की कसम के अलावा और किसी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं। इसीलिए बस क्यों क्यों वो भी एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान हो या माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, झूठ भी बोल सकता है, चाड़ी भी बोल सकता है, ये वो चोर भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उनकी कसम हम नहीं खा सकते। अल्लाह वो सच्चा है, सादिक है, वो कायम रहने रहने वाला, ना उसे मौत आती, ना वो सोता। ऐसा यानी अल्लाह ताला हर हमेशा ज़िंदा है, हय्यु व क़य्यूम, यानी ज़िंदा है, हर हमेशा कायम रहने वाला। उस पर हमें कसम खाना, वो भी सही कसम है तो उस पर खाना। अगर चल कसम नहीं, बेफुज़ूल से हमें इसकी कसम खाना, ये इंसान के लिए जायज़ नहीं। इससे हमें क्या बात पता चलती, हमें खाए तो कसम किसकी खाना? अल्लाह से खाना। अल्लाह से कसम खाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है? ये जवाब कसम है। इंसान का कसारा और हिलाकत वाज़ेह है। इंसान का क्या? ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी पैदा करते हैं, जो भी हमें खर्च करते हैं, वो क्या इंसान का कसारा और हिलाकत का ज़रिया है। यानी वो सही तरीन पर उसे खर्चा नहीं करे तो। हिलाकत के तो मालूम है, एक कागज़ को जलाकर, एक पेपर को जलाकर राख करके हमें कैसा फूँक देती हूँ उसे, ऐसा हिला कर देने का वाज़ेह है कि जब तक वो ज़िंदा रहता है, जब तक वो ज़िंदा रहता है, उसके शब-ए-रोज़ सख्त मेहनत करता है। शब-ए-रोज़ सख्त मेहनत करते हुए गुज़रते हैं। फिर जब मौत से हमकिनारा हो जाता है, तो मौत के बाद भी आराम और राहत नसीब नहीं होती। किसे? वैसे लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहे और जो अल्लाह के हिदायत के मुताबिक वो पैसा नहीं खर्च करे, वो जमा-जमा कर रखे, दुनिया के लिए जमा कर रखे, उनके लिए क्या हमें वो लोग क्या बोलते हैं, थोड़े लोग क्या बोलते हैं, खलास अब या रब ये बला से हमें मरे तो अच्छा रहता, मरे तो हमें सुकून आता, को ऐसा बद्दुआ अपने आप पर कोस लेती। ऐसा कोसना भी क्या वो जन्नत को जाती, मरने के बाद में आराम मिलता? नहीं। जब भी उसे नसीब नहीं होती, राहत और आराम नसीब नहीं होती। ख़बर में भी उतना दो उतना अज़ाब ख़बर में है। वो बरज़ख की ज़िंदगी है। ख़बर की ज़िंदगी को क्या बोलती हैं?
बरज़ख की ज़िंदगी बोलते हैं। वो खबर की अब दुनिया में आज़ादी है इंसान को, वो अच्छा भी जी सकता है, बुरा भी जी सकता है। इसका बदला क्या है? खबर में देना। क्या हमें अब हमें पढ़ते अब एक बच्चा पढ़ने के बाद में इम्तिहान देने के बाद में वो फ़ेल होता, पास होता, वो टीचर के हाथ में है, फ़ेल होना, पास होना। उसके मार्क अच्छे आए तो वो पास होता, नहीं तो वो फ़ेल होता। इसी तरह हमें दुनिया में आई अच्छा भी काम अल्लाह ताला दिखाया और बुरा भी अल्लाह ताला दिखाया, 2 भी है। ये काम करे तो जन्नत को जाती हैं, वैसे काम करे तो जहन्नम को जाती हैं। ऐसा 2 भी होने के बाद में 2 के हिसाब-किताब देखने के बाद में उसे मौत निकालता अल्लाह ताला। जब मालूम हुआ था वो मैं जन्नती या जहन्नमी कर को। इसीलिए क्या वो ऐसे लोग क्या बोलते हैं मरने के बाद में हमें आराम रहता खबर में, नहीं खबर की ज़िंदगी, बरज़ख की ज़िंदगी बहुत खतरनाक। हमें जो भी अमल करते हैं दुनिया में वही लेको हंग जाना हमें, वही उसका सामना करके हंग जाना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बेहतरीन अल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला हमको मौका दिया, वो मौके से फ़ायदा उठाना, यानी दूसरों को काम आना, दूसरों से एक को हँसकर प्यार से जवाब देना भी उसे सदका ये हमारे तरफ से सदका करे जैसा। एक की अच्छा के पूछने से एक एक जने बीमार हो को है, उसे शिफा-याबी पूछने से 70,000 फरिश्ते उसके पीछे दुआ करते हैं, उसे मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हमें समझते हैं उसे हमारा क्या ऐसा ये समझते हैं, ऐसा नहीं करना। ये अल्लाह के अब क्या अल्लाह की हिदायत के मुताबिक करने वाले को बोले हैं ना ये सुबह आ जाती है इसमें। इसलिए हमें जो भी हमें कदम रखते हैं सोच समझ कर रखना चाहिए क्योंकि यहाँ मरने के बाद में भी आराम और राहत की जिंदगी नहीं होती बल्कि वो कहाँ जाता है सुनो गौर से सुनो कहाँ जाता है वो खबर में भी आराम की जिंदगी नहीं के तो आखिरकार कहाँ जाता है बल्कि वो जहन्नम का ईंधन बन जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह देखो कितनी बड़ी बात अल्लाहू अकबर वो ना दुनिया में उसे सुकून है वो कमाई से ना दुनिया में सुकून है राहत है ना औलाद से राहत है ना वो सोने से वो पैसे से राहत है मरने के बाद में ना बरज़ख की जिंदगी में राहत ही है ना आराम है कुछ भी नहीं लास्ट में उन कहाँ जाको पहुंचता जहन्नम का ईंधन वो बदतरीन जगह वो हाँ जाको पहुंचता हाँ, जाको पहुँचता उसका अज़ाब अल्लाह ताला वो जानता, वो पढ़ा तूने वो जानता, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। हमें क्या दुआ करना है ऐसे आयत आए टाइम पे हमें क्या करना? अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह उनमें से हमको ना बना, उन नाफरमानों में से हमको ना बना, हमको फरमाबरदार बंदों में से बना। तो बोलकर हमें अल्लाह से दुआ करना। यहाँ तक उनके जहन्नम का वैसे गड्ढे में जाकर पहुँचता है, इससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं। इसलिए अल्लाह ताला दिया तो नेमत में से हमें बेहतरीन रास्ते पे खर्च करने वालों के लिए उनके लिए क्या है देखो इंशाअल्लाह ईंधन बन जाएगा। हाँ, इस कसारे से वो लोग महफूज़ रहेंगे। ऐसे कसारे से वो लोग महफूज़ ही जो ईमान और अमल साले के जामे हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इसमें ला तजअलना मिनहुम बोलना हमें, इसमें क्या बोलना अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह या मेरे अल्लाह इनमें से हमको शामिल कर दे। ये लोगों में हमें रहे जैसा हमको शामिल कर दे कोई ऐसी आयत आए तो अल्लाह हमें अल्लाह से दुआ करते रहना। इसीलिए पहले हमें कुरान पढ़ते हैं, किसी से भी बोलो तुम्हें दर्स में जॉइन हो, तुम्हें दर्स सुनोगे तो क्या बोलते हैं, हमें नमाज़ पढ़ते हैं, हमें कुरान पढ़ते हैं, हमें बहुत से न नमाज़ हमें पढ़ती हैं, बहुत हमें फरमाबरदार हैं को बोलती हैं, हो तो या कोई बात नहीं। ऐसा जमात में आने से, बैठने से एक को मालूम है तो बात है, एक को मालूम नहीं से रहती। शायद वो मालूम हुआ था, अगर जब मालूम हुई तो भी दिल पर ऐसे बातें गुज़रते रहे तो हमारा ईमान ताज़ा हुआ था। अरे मैं फलान दफ़ा फलान ये काम करी हूँ, ये काम को क्या सदका करी तो मैं ये हुआ था को बोलकर हमारा दिल साफ होता रहता। अब हमें गंदा पानी को फ़िल्टर में डालते कैसा हमें साफ आता, ऐसा साफ होता रहता। इसीलिए हमें क्या बोलना ऐसा आयत बार से भी क्या बोलना अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। उनके लिए क्या है हाँ, उस कसारे से वो लोग महफूज़ रहेंगे जो ईमान लाए और अमल साले के जामे हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी गुज़री हो। अब जैसी भी गुज़री हो के तो मतलब क्या? भूखे की हालत में, प्यासे की हालत में, गरीबी की हालत में, तंगदस्ती की हालत में, बहुत से गरीबी की हालत में बहुत से कमज़ोर सब में कमज़ोरी की हालत में गुज़री होंगी। हुई तो भी
उना का क्या हुआ, जैसे भी गुजरी हो, मौत के बाद वो न, वो बहरहाल अबदी नेमतें और जन्नत की आराइशें जिंदगी से बहरो होंगे। देखो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जअल्ना मिनहुम। देखो उन्हों कितना भी गरीबी में गुजार कर हो, कैसे भी गुजार कर हो, कैसा भी उन्होंने जिंदगी खत्म हो गई उनकी, अल्लाह ताला के उन्हें मौत लिया, लेने के बाद में क्या उनकी जिंदगी आबादी नेमतों क्या, हमें दुनिया में कितना भी माल खर्चा करो, कितना भी घर बनो, कितना भी हमें जौहर मोती को से भी हमें हीरे जवाहरात कुछ भी लगाओ, वो छोड़कर जाने का। अल्लाह ताला जब नेमतें देता जन्नत में, नेमतें और जन्नत की आराइशें, ये बेहतरीन चीजें ही है, क्योंकि ऐसे बेहतरीन चीज़ों अल्लाह ताला एक बार दिया वो ख़त्म ही नहीं होती। हमको वो ज़िंदगी होना, दुनिया की ज़िंदगी इससे दिल लगाना नहीं, जितना दिन अल्लाह ताला रखा है, उतना दिन वो होकर रहेगी। जो भी हमको रोकने वाला है, नहीं रोक सकता, जो भी टोकने वाला है, नहीं टोक सकता। अल्लाह ताला जिसको देता है, वो आसमान फाड़ कर देता है, उसे कमी नहीं होता। जो आदमी के भरोसे पर रहता है, वो आदमी कितना भी उसे दो, वो भरता नहीं। अल्लाह दिया तो सरता नहीं, आदमियाँ दिया तो भरते नहीं, ऐसा मिसाल है। क्योंकि जन्नत में अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी कितने लोगों को मिलेगी, कितने किस्मतों की मिलेगी, अल्लाह ताला उनमें हमको शामिल कर दे। आगे अहले ईमान की मज़ीद सिफ़ात का तज़किरा है। यानी अल्लाह की शरीयत की पाबंदी और हुरू हुरूमात माज़ी से इज्तनाबा की तलकीन। यानी मसाइब, मसाइब व आलाम, मसाइब के तो मुसीबतें, मुसीबत और आलाम के तो वो दर्दें। उस मसाइब व आलाम पर सब्र करना, सब्र नंबर 1। नंबर 2 क्या है? अहकाम और फराइज़ शराइत पर अमल करने में सब्र। क्या तब फ़र्ज़ नमाज़ हमें पढ़ना, फ़र्ज़ अहकाम हमें करना, इस पर शरीयत पर हमें चलना, पहले-पहले बहुत मुश्किल होती, क्योंकि उस पर भी हमें सब्र करना। पहले मुसीबतों पर, पहले बाद में 2 फ़र्ज़ नमाज़ें शरीयत पर अमल करने में, नमाज़ पढ़ने में बहुत से पहले-पहले ये होता, उसमें हमें सब्र करना। माज़ी से इज्तनाबा पर सब्र। माज़ी से के तो ये भी एक क्या वैसे रास्ते पे चलने टाइम पे बहुत सब्र। नंबर 4 में क्या लज़्ज़त और ख्वाहिशत, लज़्ज़त के तो खाने-पीने चीज़ें जो हराम अल्लाह करार दिया, उनको हराम मानना, जो हलाल करार दिया, उनको हलाल। और जो ख्वाहिशत, जो भी हमें पसंदीदा है, अल्लाह उसे नाफ़रमानी उसे हमारे लिए हराम कराया, उसे छोड़ देना। यानी जितना भी पसंदीदा है, वो हमारे लिए खराबी है, हमें छोड़ देना। पर सब्र, सब्र भी अगरचा तो उतवासो बिलहक में शामिल है, ताकि ये खुसूसियत से अलग ज़िक्र किया गया है। इससे उसका शरफ, फ़ज़ल व ख़ुसूलियत पर होगा, मुमताज़ होगा। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितने चीज़ों पे हाँ सब्र बोली, ऐसे चीज़ों से भी सब्र कर लेता है ना, पहले मुसीबतों में, फ़राइज़ नमाज़ में, शरीयत में, अमल करने में, माज़ी यानी बहुत सी चीज़ों में सब्र करना, लज़्ज़त में यानी खाने-पीने की चीज़ों में, यानी ख्वाहिशत में, सभी सब्र करने वालों की कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है। इसीलिए इसीलिए जो भी सब्र करता है, ये सूरा ही सब्र का सूरा है। वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। उसमें क्या देखो सब्र का बात बहुत आता है, हक़ का बात, सब्र का बात बहुत आता है। ये थोड़ा इसका पॉइंट हमें देखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू मदनी दरमी दरमी से दरमी रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साहबा की मुलाकात होती है, एक दूसरे से एक दूसरे से जुदा ना होते जब तक एक दूसरे पर वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर ना पढ़ते। उन्हों क्या है एक दूसरे से जब जुदा होते, जब ये सूरा पढ़कर सलाम ये सूरा पढ़े तो पहले जुदा होते नहीं, ये सूरा पढ़ने के बाद में एक दूसरे से सलाम करते थे। एक दूसरे से सलाम कर को अब जाकर आती हमें कर को बोल को जाते थे। ऐसा हमें किसी भी हमें मुलाकात तो होती ही नेक मजलिस में, जब हमें इसलिए हमें सूरा असर ज़रूर पढ़ना चाहिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं
کہ لوگ اگر اس صورت پر ہی غور و فکر کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا بہت یعنی قرآن بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے، کیونکہ یہ سورے پر غور و فکر کر کو اس کے پوائنٹ آف نظر دے کو ہمیں عمل کرے سمجھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین ثواب عطا کرے گا، اسے بہترین درجہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ۔ انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب چار چیزیں اس کے اندر ہو۔ کیا انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے اس کے اندر چار چیزیں ہو۔ کیا چیزیں وہ؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی تلقین، نمبر 4 صبر کی تلقین۔ یہ چار چیزیں انسان کے اندر ہو، وہ کسی آخرت کے نقصان سے بچ جاتا گتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے میں انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ کر دے، ہم اس خواہش پیدا کر دے نا کو چلنے کی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو یہ کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1 حق کو معلوم کرنا۔ حق کیا ہے معلوم کرنا۔ حق تو کیا؟ صحیح کیا ہے، سچ کیا ہے وہ معلوم کرنا۔ وہ کس کے؟ قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اور حق ہے کیا؟ حق کو معلوم کرنا کیا ہے، اور حق ہے کیا، اسے کیا ہے تو ہمیں حق کیا ہے کرنے کے بعد ہمیں ضرور ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اس پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا، جو جانتا نہیں، اس کو سیکھنا کہ جو جانتا نہیں، کس کو حق نہیں معلوم وہ ضرور وہ سیکھنا، اور حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں صبر کرنا۔ حق کو معلوم کرنے کے بعد میں، اسے معلوم ہونے کے بعد میں، اسے سیکھنے کے بعد میں، پھر دوسروں کو پہنچانے کے بعد میں پھر بھی صبر کرنا۔ تو اللہ صبر کے ساتھ ہی آگے پہنچا سکتے ہیں، نہیں تو جب تک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ان چاروں درجوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہ چار درجے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیے، ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ یہ چار بھی اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ تو ہم قرآن کے ذریعے حق کو معلوم بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حق کو معلوم کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ ہمارے تک بھی سیکھو، ہمارے پاس ہی رکھنا نہیں، اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، یا ان کے سیکھنے میں ہمیں ان کو مدد بھی کرنا چاہیے، یا پھر جب اس کام میں پڑیں اور باتیں بھی سننے ملیں تو ہمیں جو بھی اب پہلے سے اتنا یہ نہیں، اب یہ ایسا کیوں کرتی ہے، ایسا بہت سے باتیں بھی بہت آتی، اب ایسا پڑھانا کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، ایسے باتیں بھی بہت سننے ملتی ہیں، پھر بھی ان پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کون بھی کیا بھی بولنے دو، ہمیں کرنے کا اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں سیدھے راستے سے ہمیں کرتے ہی جانا، کون بھی بولنے سے نہیں بولنے سے ہمیں نہیں روکنا، کیونکہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باتوں سے زیادہ دل کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی، آجیگ باجیگ لوگ، یا جو بھی ہمیں معلوم ہے تو لوگ وہ بہت سے پڑھنے آئے، اب یہ عمر میں پڑھنا کیا، ایسا بہت سے باتیں بناتی، انہیں باتوں میں ہمیں دھیان نہیں دینا۔ اللہ کی کتاب صحیح ہے، ہمیں سیکھنا، ہمیں ہمارا رستہ آسان کر لینا، ہمیں جنت کو جانے کی کوشش کرنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کرے، کیونکہ جنت والوں کی سب سے ادنی درجہ کی تکلیف یہ ہے کہ ان کی نفی کی گئی ہے، یعنی باتیں سنانا۔ تو یہ جنت والوں کی سب سے ادنی نفی کیا؟ لوگ بہت سے ان کے لیے باتیں سناتے رہتے ہیں ان کو، اور ہم اس کو سب سے بڑی تکلیف سمجھتے ہیں۔ وہ باتیں سنانے ٹائم پر دل کو تکلیف ہونے کے بعد میں ہمیں سمجھتے کہ ہمیں بہت سے تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں سمجھنا۔ کون بھی سنانے دو نہیں سنانے دو، اس پر ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں اللہ کی آیتیں کرتے ہی جانا، ورنہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے کرنے ٹائم پر دوسرے یہ بولے وہ بولے کو دوسرے بولنے ٹائم پر رونا دھونا شروع کر دیتی، جو نیکی کا کام شروع کرتے ہیں وہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہی نقصان ہے۔ نقصان سے بچنے والا
नुकसान, तो यही तो नुकसान है। बचने वाला बचाने वाला है। तो नुकसान से बचाने वाला क्या है? अल्लाह ताला का ज़िक्र। अल्लाह ताला ने कसम खाकर ये बात कही है कि तू करना ही करना है। अल्लाह ताला क्या क्या बोलता है कुरान में? नहीं, किसके बातों पर तुम्हें आना नहीं, तुम्हें जो काम करे मेरे रास्ते में तुम्हें करते जाओ, तुम्हारे पीछे मैं हूँ को बोलकर अल्लाह ताला करना ही करना है। देखो करना ही करना है। अल्लाह ताला कसम खाकर कहते हैं कि जो भी दीन के काम में आगे बढ़ी, वो आगे बढ़ते जाना है, ये छोड़ना नहीं। कव्वल को अल्लाह ताला इसमें हमको बताते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएं, उनके ज़रिए से हर मुसलमान पर भी ये बात वाज़ेह है। करें, अपनी सलाहियतें करें और अपने हालात के मुताबिक हमें करना चाहिए। इससे हमें क्या मालूम होता है